often measured in kilos, but real strength that's measured in character. There's a line I love. The role of a coach is to see what a player can be before they can see it in themselves. And today's guest has built his life around exactly that. Welcome to the Curious Human Project, a podcast about sport, health, habits, and the hustle to stay human. Today, I'm joined by a national level medalist in equipped powerlifting, but more importantly, a grassroots coach who has quietly shaped champions across generations. From teenagers stepping into the gym at 12 or 13 to athletes in their 40s and 50s rewriting what they believe is possible. His coaching spans age, background, and social divides across Mumbai. Athletes travel across the city to train under him. And what they walk into isn't just a gym, it's a culture. A place where men and women are trained with equal belief, where medals are celebrated but humility is expected, where representing India isn't just a dream, it's a standard his athletes have repeatedly met. He hasn't just built lifters, he's built a community, a family that lifts each other literally and metaphorically. In a sport built on individual performance, he has created collective strength. It was his belief that enabled me to win a medal at the state level equipped powerlifting competition in 2024 at the age of 39. Coach Sanket Chavan, it's my absolute pleasure to have you with us today. Welcome to the Curious Human Project. Thank you, man. Thank you so much. I'm glad to be here with you for this podcast, and very happy to share my knowledge and my story with you. And I'm looking forward to it. And so, to begin with, I've said this in my podcast before that exactly 10 years ago, when I went to Thailand to be at a fitness school, for the first time, I saw a woman who was probably 50 or 60 years old lift a 100-kilo deadlift. But sir, that changed my life. But in Hmm. 2023, in your gym, it is the first time that I saw a 13-year-old girl lift 80 kilos deadlift. Yes, So yes, yes. I want to ask you, sir, what has your journey been like? When did you realize that you would make a really good powerlifting coach? See, I've been training since 2009. I've been training under uh, Daregar sir, Madhukar Daregar sir, and he was my coach then. He's not with us now, but we should train a lot of people now who all are at a very big positions now in powerlifting have been training under Madhukar Daregar sir. A very big Hmm. personality, very big personality. So he's not with us now, but he has trained us so well that we are able to reach our maximum heights. सर के पास Hmm. से मतलब जितने भी प्रो है ना अभी जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब सर के पास से ही आए हुए हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग कराने का एक ये है कि वहां से शुरू किया और फिर अ, आप धीरे धीरे करके आप ओल्ड एजेड लोगों को भी ट्रेन कर पाओगे तो घुमा Hmm. फिरा के बच्चों को ट्रेन करना और ओल्ड एजेड लोगों को ट्रेन करना ऑलमोस्ट सेम ही है तो Right. वो बच्चों को ट्रेन करने में ये होता है कि आप फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो और जो ओल्ड एजेड है उनको ट्रेन करने का ये है कि आप उनको मेंटेन कर रहे हो टू लिव लॉन्गर Right. हाँ Absolutely. हाँ हाँ सो पावर लिफ्टिंग किसको करना चाहिए अगर ये कोई मुझे सवाल पूछे तो वो ऐसा है कि हर एक स्पोर्ट का बेस पावर लिफ्टिंग है सही Correct. ये बात बोली है ना तो बिकॉज स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट आर द मेन बिग थ्री लिफ्ट्स and the other Mm-hmm. accessory workouts which actually help the big three will build your overall physique, will build your overall strength, will build your overall body. है ना तो That's right. बहुत सारे अभी अभी बीच में मतलब ये बहुत चल रहा था कि फोकस का बॉडी पे ध्यान दो
हाँ। बॉडी बनाओ, बॉडी पे ध्यान दो, मसल बनाओ, मसल पे ध्यान दो। एक्चुअली बात उनका सच है। वो बोलते हैं हम्म। कि बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी मतलब अगर मसल्स बनेंगे ना तो बाकी का सब कुछ अपना सेट हो जाएगा। हम्म। तो लाइक हाउ अपने पास खाने के लिए टाइम है, अपने पास काम करने के लिए टाइम है, वैसे ही थोड़ा बॉडी के मेंटेनेंस के लिए टाइम आपको होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम वो है, और आपके आसपास अगर कोई ऐसा एक जिम है या ऐसा कोई सेटअप है जो आपको वो कोई भी एज में आपको अगर वो compete करवा रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। देखो, बगैर कंपटीशन के, विदाउट द कंपटीशन, आपको ये पता नहीं चलेगा कभी भी कि आप आपका क्या लेवल है, या आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, या आपको कहां तक पहुंचना चाहिए, या आपको गोल क्या मिलेगा, या गोल क्या सेट करना चाहिए। हम्म। तो जब आप कंपीट करना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये बार है, ये स्टैंडर्ड है, और मुझे यहां तक हम्म। पहुंचना चाहिए, ये मेरे एज के लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। पावर और लिफ्टिंग मुझे एक ऐसा याद है, स्पोर्ट। हम्म। मुझे याद है जब मैं शुरुआत में 2023 में आपके पास आई थी और आपने मुझे कहा था कि मैडम आपको compete करना चाहिए, तो मैंने हम्म। आपसे कहा कि अब मैं 38 39 की हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन करना चाहती हूँ, तो मैं तो कंपटीशन के बारे में सोच नहीं रही हूँ। तब आपने हाँ। मुझे ये बताया था कि आपको कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि उस कंपटीशन के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक करेक्ट, ऑफिशियल करेक्ट, करेक्ट, रिकॉर्ड होगा कि आपका करेक्ट। स्ट्रेंथ इस समय क्या था। सही बात है, और जब सही मैंने बात है। पार्टिसिपेट किया और जब वो सर्टिफिकेट मेरे पास आया, तब मुझे पता चला कि आपने क्या कहा था, कि हाँ, हाँ, ये हाँ। एक रिकॉर्ड है जिसको आप अपने पास रखते हो, जो ऑफिशियल है, और ऑफिशियल है, हाँ। आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। उसको चेज कर सकते हैं हम लोग के पास, वो नंबर्स है जिसको हम लोग चेज कर सकते हैं। और इसीलिए compete करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा है तब तक अगर हम लोग compete करते रहे तो हम लोग का बेस्ट क्या है, ये हमको उस दिन का बेस्ट आपको पता चलेगा। और आपको किस पे राइट। काम करने की जरूरत है वो भी पता चलेगा। तो अपने पास लाइफ में एंड तक गोल रहेगा। आज मैं जिम राइट। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये करना है। आज मैं जिम जा रहा हूँ हम्म। इसलिए क्योंकि मुझे ये करना है। आज मैं जिम जा रहा हूँ इसलिए मुझे क्योंकि लाइफ में गोल्स गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गोल्स एग्री। रहेंगे। देखिए मैम, मैं हर बार ना बहुत लोगों को एक मून वाला एग्जांपल देता हूँ। हम्म। हम लोग मतलब एक ह्यूमन लाइफ पीछे 100 200 300 400 500 साल से चलते आया होगा, बराबर। तो कभी ना कभी हमारे पूर्वज हो गए, एंसेस्टर्स में से कोई एक ऐसा होगा जो सोचा होगा कि हमको मून तक जाना है। ठीक है। हम्म। तो मून तक जाने के लिए उसने बहुत सारे वो भी बहुत एवोल्यूशन का बात है ना। मून तक जाने के लिए पहला उन्होंने देखा होगा, एक रॉकेट भेज के देखता हूँ, कुछ ऐसा उड़ने वाला कुछ चीज भेज के देखता हूँ। फिर ऐसा करते 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 वो हो सकता है वो लोग कोई माउंटेन पे जाके खड़े हो और वहां से कुछ भेज के देखा हो कि यार यहाँ से हम्म। पहुंचता है क्या। फिर धीरे धीरे करके वो करते 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 पहुंचे अभी। फिर वो लोग मून पे पहुंचे, मतलब अमेरिकन हम्म। अपने से पहले पहुंचे, पर पहुंचे तो हम्म। ये पहुंचने का तो प्रोसीजर भी तो लंबा था। करेक्ट। तो ये लंबा प्रोसीजर अगर उन्होंने फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर हमको भी अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। वो एक कंसिस्टेंसी है, हम लोग वो एक ही लाइफ में एक ही गोल पे काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपका गोल अचीव हो ही जाएगा। करेक्ट। एंड बिफोर you understood all of this, हम्म। where, tell me where you were born, how did you start training, where did the first हम्म। students come from, हम्म। कैसे आप इन लोगों को मिले। मुझे ये पता है कि हम्म। हम्म। आप जोगेश्वरी में शुरुआत से हम्म। ट्रेनिंग देते हम्म। हैं। हम्म। 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 शुरुआत कहाँ से हुई, आपके जो पहले कुछ हम्म। एथलीट्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़े। मैम, ऐसा था कि मैंने शुरुआत किया था कुछ 2021 में। मैंने पावर लिफ्टिंग का शुरुआत किया था, जो मुझे लेट पता चला था। वैसे हम्म। तो मैं आपने अभी अपने पॉडकास्ट में बोला कि आपने कुछ 8 ईयर की बच्ची, 8 10 साल के बच्ची ने 80 किलो डेडलिफ्ट मारा, तो उसको भी हमने कुछ टाइम पहले से बुलाया था, तो ट्रेनिंग कराना शुरू किया था। तो मुझे लेट पता चला था। अब मुझे हम्म। लेट पता चला था, तो जब तक मैं और तैयार होता तब तक एक्चुअली एज, जो कंपटीशन का एज है वो चला जाता है। अब हम्म। एक्चुअली मतलब आपको अगर अच्छा पावर लिफ्टर प्रूव हो जाना है ना, तो आपको जल्दी शुरू करना है। राइट। ठीक है। तो भले से मैं लेट शुरू हुआ, पर मुझे ये लगा कि अगर मुझे अगर इसका ये गवर्नमेंट जॉब, मतलब पावर लिफ्टिंग में से गवर्नमेंट जॉब्स और वो सब मिलता है। ठीक है।
तो मुझे भले से नहीं मिला, पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 3-4 बच्चों को जॉब मिले। हम्म। और ये गोल्स है। और क्योंकि मैं जहां पे रहता था उसके सामने बिल्कुल एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल है। ठीक करेक्ट। है। अब जब जो 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 मेरे एज के जो थे, जो जब मैं फिफ्थ में था, तब वो हम्म। स्कूल में भी कुछ बच्चे होंगे जो फिफ्थ में होंगे, सिक्स में होंगे। तो जो मेरे साथ वाले, मैं अलग बात है, मैं इंग्लिश स्कूल में था, मैं इंफेंट स्कूल में था, और वो लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में थे। तो जो वो लोग मेरे साथ में पढ़े बड़े थे ना, वो लोग बाद में जब मैं 10th 11th 12th तक पहुंचा, तब मैं देख रहा था कि वो लोग कोई अच्छा था, कुछ कुछ उनके लाइफ में कुछ मिला नहीं उनको, या उनके लाइफ में उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। वो लोग हम्म। कुछ मतलब गलत गलत राह पे निकल गए थे वो लोग। तो जैसे हम्म। कोई कोई दारू पीते दिख रहा है, कोई गांजा करते दिख रहा है, कोई कुछ करते दिख रहा है, इट इज नॉट गुड, है ना। या। तो उन, उनके लाइफ में उनको एक गोल देने के लिए और उनका लाइफ सेट कराने के लिए, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने वो शुरुआत किया कि ये एक राइट। म्यूनसिपलिटी स्कूल था, जहां पे से मैंने उनको ट्रेनिंग देनी शुरू किया। फ्री में ट्रेनिंग दे रहा था मैं। हम्म। 2000 2013 से लेके 17 18 तक मैंने फ्री में ट्रेनिंग दिया है। राइट। सिर्फ इसके लिए ताकि पावर लिफ्टिंग का ग्रोथ हो और लोगों को पावर लिफ्टिंग के बारे में जागरूकता आए, मतलब ये हम्म। स्पोर्ट क्या है, ये लोगों तक पहुंचे। इसके राइट। लिए मैंने ये किया। ठीक है। और मैं बोलता हूँ ना कि हर बार कुछ भी किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कभी करेक्ट। आई वेस्ट नहीं जाता। बिलीव इन दिस। हाँ। तो कभी भी वेस्ट नहीं आता मैम, उसका मेरे को बहुत फायदा होता है मैम। आज हम्म। मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में मेरे पास जो है, वो भी सब कुछ पावर लिफ्टिंग की वजह से ही है। चाहे करेक्ट। अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। हमको दोनों साइड एक्सेप्ट करना है। तो वो जो बच्चे हैं उसमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जो लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला। हम्म। बाकी के लोग अभी भी घुमा फिरा के यही फील्ड में, वो लोग पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के ही रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। और राइट। वो मेरा अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। तो राइट। जो एक आध दो जो मेरे बच्चे थे, वो अभी रेलवे में लगे हैं, मतलब जो तभी शुरुआत जो मेरे साथ किए थे, वो अभी हम्म। रेलवे में है। कुछ लोग हम्म। पर्सनल ट्रेनर बने हैं। और हम्म। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग तो मेरे से भी आगे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि एब्सोल्युटली। हमने हमने कभी किसी को ट्रेन किया था, अभी वो यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वो खुशी होती है ये देख के। तो मैं बोलता हूँ कि हर एक, अगर आपके पास टाइम है, तो आपको भी किसी को एक्चुअली तैयार करना चाहिए, टू राइट। फॉर हिज बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट। पासिंग ऑन योर नॉलेज इज सो हाँ, इम्पोर्टेंट, इज राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस यू पास यू एक्चुअली गेन नॉलेज। Correct. I agree. हाँ That's a हाँ हाँ। really, really good point. And so, because we are talking so much about powerlifting, for our listeners who may not be well पावर लिफ्टर, acquainted with weightlifting, can you tell us a little bit about the difference between powerlifting, equipped powerlifting, and what people see a lot, which is Olympic lifting? Because I think या people view the sport a lot when Olympics happens, and people know Mirabai Chanu and या। Maleshwari. So हम्म। these are different sports. हम्म They fundamentally look similar, but there are differences. So if you could take us हम्म। through what the differences are. हम्म। मैम, मैं अगर मुझे कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ पहले कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। ठीक है। Hmm. फिर मैं सीधा रिलेट करता हूँ क्रिकेट को। यू नो क्रिकेट। तो वो लोग बोलते हैं हाँ, क्रिकेट को हम लोग जानते हैं। तो Hmm. यू नो क्रिकेट इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट। Yes. क्रिकेट इज इवन पावर लिफ्टिंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट, बट इट इज अ स्पोर्ट। Correct. So I relate that because even powerlifting is a sport. Not Yeah. every sport is in Olympics. Correct. Correct? Not every sport is in Olympics. Yeah, but in this powerlifting, we have the same facility or same we get like how cricketers getting award. सेम जैसा क्रिकेटर लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, रेसलर लोगों को मिला है, वेट लिफ्टर लोगों को मिला है, वैसे ही पावर लिफ्टर लोगों को भी 2-3 अर्जुन अवार्ड अपने पावर लिफ्टिंग के फील्ड में भी है, Right. मिल But चुका है द्रोणाचल। जो जो ओलंपिक लिफ्ट होता है उसमें और पावर लिफ्टिंग में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंसेस वेट लिफ्टिंग या ओलंपिक लिफ्टिंग में स्नैच होता है। हम्म। उनका एक फर्स्ट इवेंट होता है स्नैच, सेकंड हम्म। इवेंट होता है क्लीन एंड जर्क। या।
ठीक है। अब वो एक्चुअली अपना पावर लिफ्टिंग उसी से डिराइव्ड है। जैसा राइट। उसका जो लिफ्ट है ना, उसमें थोड़ा इजी कर दिया। उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग में 50% पावर और 50% टेक्निक का गेम है। करेक्ट। ठीक है। इन पावर लिफ्टिंग इट इज 80% पावर एंड 20% टेक्निक। राइट। तो राइट। इट इज इफ यू आर पावर लिफ्टिंग यू हैव अ गुड वेरी गुड पावर। Right. And the दैट्स व्हाई basic दिस is the इज same, right? You बेस have इज to द know सेम। how to squat. You have to know how या to do deadlift. You have हाँ to know how to do a push press. You have to know how to यस do bench press. And then यस you can try and do a snatch or a clean and jerk. क्लीन एंड जर्क या But the basics, the fundamentals are derived from powerlifting. फ्रॉम पावर लिफ्टिंग या एंड बट एक दो ऐसा ये भी है कि जो वेट लिफ्टर होता है ना, उसका बेंच उतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा ये है, कॉन्ट्रास्ट है जैसा कि अगर अगर आप स्नैच बहुत अच्छा करते हो ना, तो आपका Hmm. आपका शोल्डर उतना टाइट नहीं होगा जितना एक पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस वाले को चाहिए। राइट। बिकॉज तो स्नैच हाँ, और क्लीन एंड जर्क में बेंच प्रेस वाला पावर, वो एक्शन अलग है। हाँ है नहीं। शोल्डर हाँ, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, डेडलिफ्ट है, पुश प्रेस है, हम्म, बट हम्म, बेंच हम्म, प्रेस का जो एक्शन है, चेस्ट प्रेस हम्म, का एक्शन है, वो उन एक्सरसाइजेस में नहीं है, इसलिए नहीं है नहीं है हाँ, कोर पार्ट ऑफ देयर वर्कआउट, आई थिंक। या हाँ, उनका अलग है। पर फिर भी मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे इसमें जो दोनों भी अच्छे अच्छे से खेल सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि दोनों में वो लोग चैंपियन है, पर हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं वो भी स्टैंड करते हैं। वो लोग वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, वो लोग पावर लिफ्टिंग भी करते हैं और हम्म। अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं वो लोग। मतलब अ, दोनों में उनको मेडल आने का, नेशनल में मेडल आने का पूरा चांस रहता है। राइट। ऐसे ऐसे लिफ्टिंग करते हैं। हाँ हाँ। सर, मुझे आपको ये तो पूछना है कि जब मैंने गूगल पे, मैं मुंबई में नहीं थी, जब मैंने गूगल हम्म पे आपका जिम देखा, मेरे घर से हम्म वो 1 किलोमीटर की दूरी पे था। हम्म। और मुझे एकदम क्लियरली याद है कि जब हाँ मैंने गूगल पे फोटोज देखे ट्रू पावर जिम के, हाँ हाँ तब उसमें वो एक छोटा सा जिम था, मुझे ये समझ आया था कि वो एक हाँ छोटा जिम है, एक कमर्शियल हाँ जिम हाँ नहीं है। हाँ हाँ। सारे जो फोटोज थे, हम्म। उसमें लड़कियां थी जो बहुत सारा वेट उठा रही थी। उठा रही थी हाँ और हाँ हम जब लड़कियां, लेडीज जिम ढूंढते हैं, हाँ कई बार ये जो लोकल जिम्स होते हैं, इसमें हमारा फियर ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, हाँ हाँ। बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक लिफ्टर्स, वो जिम ब्रोज जो बोलते हैं, उस तरह का हम्म। एनवायरनमेंट होगा। हाँ इससे हाँ हम ज्यादा डरते हैं, ये हम देख रहे हाँ होते हैं। हाँ लेकिन जब हाँ मैंने हाँ फोटोज देखे तो मैं तुरंत आके आपसे मिलना चाह रही थी। और जब मैं हाँ। आई, तब मैंने देखा कि यू आर अ ट्रू एडवोकेट फॉर विमेन एथलीट्स। हम्म। You believe in the potential of women to be really good and successful athletes. You या support them हम्म equally. और मैंने ये देखा है कि हमारे जिम में इक्वल मेन एंड वुमेन एथलीट्स हैं। ऐसा नहीं है करेक्ट कि दो करेक्ट तीन करेक्ट। लड़कियां हैं और 20 नहीं 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 लड़के हैं नहीं जो पावर नहीं लिफ्टिंग कर रहे हैं। नहीं कभी कभी तो जिम में लड़कियां ज्यादा होती है। ज्यादा लगती है। सही बात है तो हाँ हाँ मुझे हाँ आपसे ये पूछना है कि आपने कई सारी लड़कियों को ट्रेन किया है और कई सारे लड़कों को ट्रेन किया है। आपने अक्रॉस एज ग्रुप ट्रेन किया है, 12-13 साल की जो हम्म नेशनल मेडल विनर हमारी हम्म। जिम की लड़की है, सेजल, से हाँ लेके हाँ सलमा मैम जो 45-47 ईयर्स की हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि विमेन को ट्रेन करने में और मेन को ट्रेन करने में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फंडामेंटल, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो शायद थोड़ी डिफरेंट हो, जो आप इस्तेमाल करते हो, कम्युनिकेशन में हो गया या अंडरस्टैंडिंग में हो गया या उनके हॉर्मोन्स के रिलेटेड हो गया, उनके फेजेस, उनके घर के हम्म। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जिम में वो ट्रांसलेट कैसे होता है, ट्रेनिंग में वो ट्रांसलेट कैसे होता है। मैं ना मैं सलमान मैम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो लॉकडाउन चल रहा था, अपने यहाँ पे लॉकडाउन था, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला ही था। तो मैंने एक कंपटीशन ले लिया था, उसमें टू पावर डेडलिफ्ट चैंपियनशिप था अपना, वो थर्ड कंपटीशन था। 19 20 21 हाँ, थर्ड कंपटीशन था हमारा।
और के तो बारे में एक लाइन अगर आप पहले बता देंगे, आप उनके बारे में बता हाँ रहे हैं तो उनके अचीवमेंट्स, हाँ सो दैट हमारे लिसनर्स को पता चले कि वो हाँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। तो सलमान हम, मैं वही से उनका उनका वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सलमान हम जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे ना, ये कंपटीशन ग्रुप और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए आए थे। और हाँ। मैम को एक्चुअली पता भी नहीं था कि डेडलिफ्ट क्या होता है। मैंने हम्म। उनको वीडियो कॉल पे ही मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे डेडलिफ्ट करना है, ऐसे ऐसे करना है, मैडम आप आ जाइए। ठीक है। हम्म। आप सोचिए ना कि एक डेडलिफ्ट कंपटीशन कैसे किसी की जिंदगी बदल देता है या किसी किसी राइट। की जिंदगी बदल सकता है। वो हम्म। मेरे सामने एकदम प्योर एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल। तो सरवणम एकदम मतलब सोफिस्टिकेटेड थे पहले। ठीक है। उनके फ्रेंड ने उन वो जब अपने पास कंपटीशन खेलने भी आए थे ना, बुरखा बन के आए थे और मुझे ये हम्म। पूछ रहे थे कि सर कर सकते क्या ऐसा। अब तब बुरखा वाला कुछ रूल नहीं था, अभी तो आप हिजाब पहन के भी डेडलिफ्ट कर सकते हो। तब ऐसा वाह। कुछ रूल नहीं था, है ना। हम्म। तो ये एक अच्छा हो गया है, जिसको जो पहनना है आप पहन के कर सकते हो। हम्म। तो मैडम को उनके एक फ्रेंड ने अच्छा खासा पुश करके वहां कंपटीशन तक लाया। मैडम को मेरे को लगता है सिल्वर मेडल, वो कंपटीशन में सिल्वर मेडल आया था, गोल्ड नहीं आया था, सिल्वर आया था। ऑलरेडी अबव 40 देन। शी वॉज अबाउट 40 दैट टाइम, या। तो सलमान ने वो एक मेडल के बाद, मैडम अभी 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको मेडल है। हम्म। 2 बार एशियन चैंपियनशिप में उनको मेडल है, और इस बार ये साल 2026 में मैडम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। वाह। तो ये आप सोचिए ना कि किस पे कैसा कितना अच्छा इफेक्ट हो सकता है। हम्म। आपके मतलब आपका सोच क्या है ना, इसमें बहुत मैटर करता है। हम्म। अभी अभी आपको हार्मोनल चेंजेस है। अभी आप सोचिए ना कि वो भी वहां वहां तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे देखो, वो वसई से जोगेश्वरी तक रोज ट्रैवल करके आ रहे हैं, यस। है ना। उनके भी पीरियड्स अभी बंद होने वाले होंगे। तब फिर वो एक फेज से वो जा रहे हैं, हॉट फ्लैशेस, ये वो आप समझ रहे हैं। तो या। उस हाँ, उसको भी टैकल करके जैसे तैसे मैडम नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच ही जाते हैं, और वहां पे नंबर निकालना बहुत बड़ी बात होती है, जो मैडम कंटिन्यूसली नंबर मतलब नंबर्स में है। आप विक्ट्री स्टैंड पे मैडम हर बार चढ़ ही रहे हैं। तो हम्म। ये एक मेरे लिए भी इंस्पिरेशन या। है ना। तो बहुत सारे लोग तो इस 40s के बाद ये बोल के रह जाता है कि अब नहीं हो पाएगा यार, अब मैं हम्म। वॉकिंग कर लेता हूँ, अब हम्म। अब मैं नहीं हो पा रहा है, हम्म। अब नहीं हो पा रहा, अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर के पास मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उनसे राइट। सलाह लो। राइट। उनसे आप, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिजियो के पास जाओ, ठीक हो जाओ, और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करो, जो सलमान खान ने किया है। करेक्ट। तो करेक्ट। वुमेन आर एक्चुअली मोर स्ट्रोंगर देन मेन, एब्सोल्युटली मोर आई एग्री। स्ट्रोंगर। हाँ, दे हैव दैट स्ट्रेंथ एंड व्हाट डू यू से, वो उनके पास परसिवरेंस है, मतलब वो झगड़ के अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, राइट। और उनके अंदर वो कैपेसिटी है करेक्ट। मुझे ऐसा लगता आगे है जाने की। वुमेन हाँ। में जिम में पहुंचना ही, औरतों का जिम में रेगुलरली पहुंचना ही इंडिया में इतनी बड़ी हम्म, बात है, क्योंकि है उनकी है घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, सोसाइटी उनको कुछ और को कह रही होती है। हम्म। उनको जो कहा जाता है बड़े होते हुए, वो मैसेज भी ऐसा नहीं होता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप हम्म फिजिकली स्ट्रांग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हर लड़की को वो मैसेज नहीं मिलता है जब वो बड़ी होती है। हम्म। तो अगर कुछ ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं जो जिम में हर रोज आती हैं, तो वहां तक पहुंचना ही इतनी बड़ी बात है उनके लिए। पर मैम आप ये बात मान लीजिए मैम कि जमाना बदल रहा है। हाँ, ये तो हो जमाना रहा बदल रहा है, है। जमाना बदल रहा है, और मैं ये बात से मैं खुश हूँ कि जमाना करेक्ट। बदल रहा है। लोगों को ये पता चल रहा है कि वर्कआउट करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि मुझे मेरे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखना एब्सोल्युटली। है ना। बैलेंस करके रखना है मुझे, मेरे अपने पीरियड्स टाइम पे आ रहे या नहीं आ रहे, उस पे मुझे ध्यान रखना है। मेरे स्टेप्स हो रहे कि नहीं, ये मुझे ध्यान रखना है। ये एक करेक्ट। पॉजिटिव साइड है जिसको हमको एब्सोल्युटली। ध्यान रखना है ना। आई एग्री। तो पॉजिटिवली मैं हर बार ना मैम, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप यू टॉक असर्टिव,
assertive is always talking positive. So, Absolutely. so no negative word should be in your sentence. Hmm. So we Keeping your we mind. try to be, huh, so we try to be positive every time. You try to talk positive so that positive happens. मैं ये Hmm. बोलता हूँ कि दिन में 2 बार अपने पूर्वज अपने को तथास्तु बोलते हैं। Hmm. तो अगर सोचिए ना, आप अगर कुछ आपने कुछ अच्छा बोला कि हाँ मैं ये मुझे नेशनल मेडल आने वाला है, और अगर उन्होंने तथास्तु बोल दिया तो आप, ये हो जाएगा, मतलब आपका वो काम हो जाएगा। तो ऑलवेज बिलीव इन गुड थिंग्स ना, Yeah. always believe in na always believe in being positive, so Yeah. that you and your surroundings will have a positive background with you, which will actually push Yeah. you further to the Yes. next level, यस। huh? आपने अभी जो कहा ना पूर्वजों के बारे में, उससे मुझे एक वर्ल्ड फेमस पोएटिस है और राइटर है माया एंजेलू। Hmm. उन्होंने एक चीज कही थी उनकी एक इंटरव्यू में जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने ये कहा था कि लोग ये कहते हैं कि इस एथलीट में जैसे कोई बात है ना। Hmm. 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 अंग्रेजी में Hmm. कहते हैं आप में करिश्मा है, आप में ऑरा Hmm. है। Hmm. 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 माया अंजुली ने कहा था कि इसका मतलब क्या है। Hmm. तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओ या जैसे हम Hmm. पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, आप स्टेज पे जाओ, है ना। तो वहां पे आप कॉन्फिडेंस पाने के लिए क्या करो, तो अपने मन में स्टेज पे जाने से पहले ना अपने सारे पूर्वजों को बुला लो जो आज Correct. है, Correct. जो नहीं है। दादी आप भी आओ साथ में, पापा आप भी आओ साथ में, Hmm. Hmm. आप Hmm. अपने ग्रैंडफादर को बुला लो, जो Hmm. Hmm. जितने भी Hmm. लोग, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेशन में नहीं है लेकिन जो जिनको आप पसंद करते हो, उनको सबको बोलो Correct. आप Correct. आज मेरे Correct. साथ आओ इस स्टेज पे। Correct. 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 उन्होंने कहा था तब मैं ऐसे जाती हूँ स्टेज पे अपनी पोएट्री सुनाने के लिए या लोगों से बात Correct. करने के लिए। तब Correct. लोग ये Correct. बोलते हैं कि इनमें कुछ बात है। सही बात, सही बात है। थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ मैम, इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ। वो ऐसा है ना मैम, आपके जो भी आपके अराउंड में सराउंड में जो भी पॉजिटिव लोग हैं ना, हम्म। आप उनको साथ लेके जा रहे हो, आप उनका वाइब, आप उनका ऑरा आपके साथ लेके जा रहे हो, जो करेक्ट। आपको वहां पे हेल्प कर रहा है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट की जरूरत जरूरत है। करेक्ट। है ना। और वहां पे आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर जाते हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि है मेरे साथ कोई, हम्म। मेरे पीछे खड़े हैं जो मुझे टैप करने वाला है। यस यस यस, वेरी नाइस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। बी पॉजिटिव इज इंपॉर्टेंट, एंड सराउंडिंग yourself with positive vibes is very important। आई फुल्ली एग्री। गलत लोगों के साथ रहना मतलब गलत राह पे चले जाना, जो मैं समझता हूँ कि अपने को नहीं जाना चाहिए, सर ऐसा है ना। कहते हैं कि यू आर अ सम टोटल ऑफ द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ। करेक्ट 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 करेक्ट, जे यस जो यस लोग यस। आपके आसपास है उन सब का आप एक कंक्लूजन हो, एक टोटल। कंक्लूजन, करेक्ट 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 तो करेक्ट एक करेक्ट। इंसान को अगर जानना है तो उसके आसपास कौन लोग हैं उनको पता कर लो बस। वो पता करो। सो सर आगे बढ़ते हैं, मुझे एक चीज और आपको ये पूछनी है कि जो हमारा जिम है, हम्म। अ, हमने थोड़ी इसके बारे में बात करी अभी कि हर तरह के लोग आते हैं उस जिम में, करेक्ट करेक्ट, है हाँ ना। हाँ। एज हम्म। अलग अलग है, जेंडर अलग हम्म। अलग है, रिलीजन अलग अलग है, सोशल हम्म। स्टेटस अलग अलग है। करेक्ट करेक्ट। और ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफिशिएंसी पावर लिफ्टिंग की, कोई बिगिनर है, कोई छोड़ के एक साल बाद हम्म। आया है, कोई एकदम सुपर एथलीट है। करेक्ट, और हाँ कुछ हाँ। लोग ऐसे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और वो आके आपसे अपनी एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। करेक्ट 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 तो करेक्ट। ये मैंने देखा है कि दिस इज अ वेरी यूनिक कल्चर दैट यू हैव बिल्ट इन दिस जिम, वेर एवरीबडी सपोर्ट्स, everybody is one family and all of us in the gym have one goal which is to improve ourselves। करेक्ट, या कंपटीशन नहीं, मैं आज जहां हूं मुझे यहां से आगे बढ़ना है। थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा, हाँ, एवरी डे जिसकी वी मैं मदद वी कर सकती ट्राई टू हूँ, मूव। हाँ जिसकी मैं मदद कर सकती हूँ जिस तरीके से भी, उसकी मैं मदद करूंगी। तो करना चाहिए, हाँ हाँ। ये कल्चर जो है ये हमारे ट्रू पावर जिम का बहुत यूनिक है। तो ये कल्चर आपने कैसे बनाया, और क्या ये मतलब कोई एक तरीके का डिसीजन था, ये अपने आप बन गया, लेकिन ये वैल्यू सिस्टम्स जो है ये आपने कैसे इस जिम में इनकलकेट की है सभी एथलीट्स में।
मैम एक एक बहुत अच्छा मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया मैम, मैं पहले ना एक्चुअली फीस भी नहीं लेता था। हम्म। मैं फीस भी नहीं लेता था। मैं फीस भी मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि एक जगह, ये जो जगह मैंने लिया है, पहले तो मेरा खुद का ही जगह था, हम्म। जिसपे मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि फीस आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर आप लोग आओ ट्रेनिंग के लिए, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मैम जो मेरे पास फ्री में ट्रेनिंग करते थे, और हम्म। मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं ये बोलता था कि तू आके कर, वही बहुत है। हम्म। तो उन्होंने भी अपने लाइफ में अच्छा किया, मतलब उन्होंने भी, उनको वो लोग वो खुद बोल सकते हैं कि इसके पास जब तक मैं था तब या। तक उसने मेरे को अच्छा लिफ्टिंग कराया था, 200 स्क्वाट तक पहुंचाया, इतना पहुंचाया, उतना पहुंचाया, पहुंचाया। मैं सच में मैम, जिसको चाहे जो लगे मैम, मैं पावर लिफ्टिंग के लिए बहुत ये हूँ, मतलब कि मुझे कराना है, लोगों को कराना है, जैसे हम्म। तैसे कराना है मेरे को। ठीक है। हम्म। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं मैम, अलग अलग ये है, सबका मेंटेलिटी अलग अलग है ना। तो हम्म। पर इनको जोड़ के रखने वाला क्या बात है पता है मैम, ये है कि पावर लिफ्टिंग में आपको पट्टी बांधना है, आपको हम्म। कॉस्ट्यूम चढ़ाना है, और इसके लिए आपको चार अलग अलग लोगों की जरूरत है। आप खुद का खुद ट्रेनिंग नहीं कर सकते अकेले। करेक्ट। ठीक है। इसलिए इसलिए हमारे जिम में पर्सनल ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या। और हम लोग वो मतलब जिम में मैं पैसे कमाने के हिसाब में नहीं हूँ। मैं बस ये राइट। हिसाब में हूँ कि कैसे तैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों, तो हमको अमेजोन बनना है मैडम, हमको रिटेल शॉप नहीं बनना है। हमको हम्म। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेके जाने हैं, जो हम लोग करने में सक्सेसफुल है। भगवान का आशीर्वाद है मैडम, मेरे को सच में भगवान का आशीर्वाद है कि मैं हम लोग हर कंपटीशन में, अगर हम लोग चाहे हमको इतने इतने बच्चे लेके जाने हैं, तो हम लोग मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, क्योंकि सब लोग मुझे साथ देते हैं उस वक्त। हम्म। सब लोग आके खड़े हो जाएंगे, सब लोग आके खेलेंगे, जब सब लोग आके पट्टी बांधेंगे। कोई बहुत रेयर है कि हम लोग एक दूसरे से कोई जलन ही नहीं लगता है। करेक्ट। तो जैसे वो नहीं होने की वजह से, हर एक अपना बंदा उसका बेस्ट निकालने के लिए, जैसा अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उसका, वो कॉम्पिटिटर का बेस्ट निकालने के लिए उसके पीछे चार लोग लगे हुए हैं, जो उसको जितवाएंगे। करेक्ट। वो उसका बेस्ट निकालेंगे, वो जीते हारे वो आगे का बात है, पर वो एटलीस्ट अपना पीआर तो हिट कर जाए। करेक्ट। जो अभी तक नहीं आया वो तो कर, स्टेज पे मिल रहा है, स्टेज पे परफॉर्म तो करो। राइट। तो ये चक्कर में ना सब लोग एक दूसरे को बहुत तगड़ा जुड़ते हैं, एकदम अच्छा हाँ। बॉन्डिंग है उनका, और वो हाँ। बॉन्डिंग की वजह से टीम एकदम अच्छा बिल्ट रहता है ना। हम्म। क्योंकि ओ, यही और सब हमें, भी चाहिए हर रोज। हाँ, और हमारे पास ये भी है कि एक ही कॉस्ट्यूम तीन तीन चार चार अलग अलग लोग डालते हैं, हम्म। वो भी कोई तकलीफ नहीं है किसी को। तो करेक्ट। कि ये नहीं कि ये कॉस्ट्यूम मेरा है तो मैं तुझे ही दूंगा, वो कॉस्ट्यूम मेरा है तो ये मैं शेयर नहीं करूंगा, ऐसे नहीं है। या। सब लोग शेयर करो, सब लोग करो, लिफ्टिंग करो, मेन अपना गोल है लिफ्टिंग करना ना। लिफ्टिंग करो, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अच्छे से करते हैं, और वो सबसे बेस्ट है अपने जिम में, कि सब लोग एक दूसरे को उठा के सब लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और राइट। उसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए मैम। सिर्फ सिर्फ पावर लिफ्टिंग ही नहीं, कुछ मेरी वुमेन, मतलब कुछ लड़कियां हैं जो बॉडी बिल्डिंग खेल के आई है मैम, या। जिनके घर पे ये तक भी नहीं पता कि वो लोग ने बॉडी बिल्डिंग खेला है। राइट। पर मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैम, बहुत बड़ी बात है, आप किसी, कोई जिम में भी आप जा रहे हैं ना, कोई 6 महीना 8 महीना 1 साल से भी अगर कोई जा रहा है, उसको बोलो विंग्स खोल के बताए, कोई विंग्स खोल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अभी तक सेट नहीं हुआ है। हम्म। अब समझ है। अगर अगर जो लड़कियां मेरी उतरी है स्टेज पे, उन्होंने अगर वी शेप और बैक ऐसा खोल के बताया है, मतलब आप सोचिए ना कि वो कितनी ट्रेंड करेक्ट। है ना। तो वो भी तो उसको पावर लिफ्टिंग नहीं दिया करेक्ट। इट्स द है ना। बेसिस, द The बेस। base, बेस। base. So I am very happy and very thankful to God to have such a good surrounding and such a good support system around me. I राइट। am all because of the students around me, man. या। They have actually made me a big person, या। which is good, which is what I like, which is what I want to do all my life. Correct. We all है ना? learn from each other. And what you said, I'm going to remember. We want to be the Amazon of powerlifting. Actually, man, we want to do that, man. We want to do that. So we try to reach every person out, whoever I'm not even not even able to train.
या अगर मैं उसको ट्रेन नहीं कर पाता तो मैं किसी के पास भेजता हूँ कि जी इसके पास जाओ ट्रेनिंग करो, आप जाओ। या क्योंकि बहुत लोग हैं जो दूर से अपने पास नहीं आ सकते, तो मैं नंबर देता हूँ, ये इनके पास कांटेक्ट करो, आप जाओ पर पावर लिफ्टिंग करो। करेक्ट। आप किसी को ना मैम अच्छा करने के लिए सिखाओ, आप किसी को गलत करने मतलब कुछ गलत आदतों पे मत लगाओ। अगर आप किसी को, अगर पावर लिफ्टिंग का आदत एक स्पोर्ट आप किसी को चुन के दे रहे हो और उसको बता रहे हो कि यहाँ यहाँ पे ट्रेनिंग होती है आप जाओ, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। करेक्ट। आप उसका आगे का लाइफ थोड़ा बहुत सेट कर रहे हो, एब्सोल्युटली। है ना। एब्सोल्युटली। तो करना चाहिए। अब मैं अभी बीच में एक उनका एक वीडियो आया था, जो भोजपुरी एक स्टार है, उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आपके पास कुछ भी नहीं ना अगर, तो भी आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, कुछ भी नहीं तो चने खाओ, चने भिगा के रखो, चने खाओ और सुबह भागो, दंड हम्म। दंड मारो, बैठक मारो, कुछ पैसे नहीं लगते। आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आप, आपका लाइफ कैसा चेंज होएगा आप देखिए। तो वो बहुत मोटिवेशन वाला बात है। और मैंने धीरे। ये चीज हमारे जिम में भी देखी है सर, कि जैसे अभी आपने कहा कि इक्विप पावर लिफ्टिंग में एक कुछ तरह की इक्विपमेंट लगती है जिसमें आपका हाँ बॉडी हाँ सूट होता है, आपके नी हाँ पे हाँ। एक टाइट पट्टी बनती है, आपकी रिस्ट पे हम्म। पट्टी बनती है। और हम्म। ये जो सूट्स हैं ये महंगे आते हैं, ये 20,000 करेक्ट। तीस हाँ हजार हाँ के हैं। हाँ तो हाँ हाँ। आपने सारे सारे एथलीट्स को, जो बिगिनर भी है और जो प्रोफेशनल भी है, उनके लिए कुछ सूट्स अवेलेबल करके दिए हैं अलग अलग साइजेस में। करेक्ट और मैंने करेक्ट। एक चीज सारे एथलीट्स की देखी है कि हर कोई वो सूट शेयर करता है। कई बार तो जल्दी जल्दी हो जाती है कि कोई स्टेज से निकला है, उसका साइज का उसका सूट निकाल, आपको हाँ। पहनना है, तो आप जल्दी जल्दी में सूट चेंज कर रहे हो। ये सब आइडियल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का सूट फट जाता है या फट गया है, नया लेके आने के लिए टाइम नहीं है। पर मैंने देखा है कि हमारे जिम में सब इतने ज्यादा फोकस्ड है कि कोई एक्सक्यूजेस में नहीं घुसता है सही बात। कि मेरा सूट इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं है, मेरा सूट फट गया है। क्योंकि वो उससे आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है, पर कोई इसकी बात नहीं कर रहा। सोचते ही नहीं है, हाँ। है वो मेरे पास है, मैं स्टेज पे जाऊंगा और मैं परफॉर्म करूंगा, और जो करेक्ट। आज किस्मत में लिखा है वो होगा। वो होगा अगली होगा, बार हाँ। अगर किस्मत होगी, अच्छा सूट होगा। तो सही ये बात है, चीज सही बात मैंने है। जो जिम अपने जिम में सीखी है, वो एक्चुअली मैं अपने लाइफ में यूज करने की कोशिश करती हूँ कि जहां जहां पे किसी चीज की एक्सक्यूज देने का मन हो, तब हम्म। इन सारे जिम वाले हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं याद करती हूँ। पर सर आगे करेक्ट बढ़ते करेक्ट। हैं। हम जो कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ से, हम एथलीट्स की तरफ से, जो भी चाहे हमारे सराउंडिंग्स हो, सब मन लगा के वर्कआउट करते हैं, प्रोग्रेस ट्रेनिंग करते हैं, करते हैं, हम्म। जो हो सके उनसे वो करते हैं। करेक्ट। लेकिन बात ये भी है कि हमारा देश बाकी देशों के जैसे इतना प्रोग्रेस नहीं है, इतना सपोर्ट अभी तक स्पोर्ट के लिए एंड टू एंड अभी हम्म। तक नहीं है। नहीं है, नहीं तो है। मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपको स्टेट फेडरेशन के साथ 5 मिनट मिले, हाँ ठीक, और वो हाँ। संकेत चौहान कोच को ये पूछे कि आप हमें 3 ऐसी चीजें बताओ जो हम्म। हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं ताकि एथलीट्स अपना परफॉर्मेंस और अच्छे से दे सके, ताकि वो और कंफर्टेबल हो, उनको ऐसा लगे कि स्टेट फेडरेशन का हमें अच्छी तरह से सपोर्ट है। 3 ऐसी चीजें जो और अच्छी कर सकते हैं वो। मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। ऐसा ये वाला सवाल मुझे किसी ने नहीं पूछा था इससे पहले, जिसकी जरूरत है मैम। ठीक है। अभी मैम अगर समझो स्टेट, स्टेट में मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि ये होगा, धीरे हम्म। धीरे होगा होगा होगा। ठीक है। मैम याद रखना मैम, वो टाइम अभी आप और मैं है, इसके 10 साल बाद अपन फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे मैम, जिसमें हम्म। हम लोग में मैं ये बोलता हूँ मैम कि अभी से 10 साल बाद ही क्यों ना हो, अपने पावर लिफ्टिंग एथलीट्स को हर एक बैंक हायर करेगी, हर एक बैंक, हर एक करेक्ट। बड़ी कंपनी हायर करेगी, हर एक अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास, जो अपना कंपनी चला रहे हैं, जिनके पास काम है, जो लोग काम देने के लिए है, वो हम्म। अपनी अपनी कंपनी अपने अपने एक एक एथलीट को हायर करेगी और वो खिलवाएगी कि तुम लोग खेलो। राइट। वो दिन दूर नहीं है कि पावर लिफ्टिंग का एक प्राइवेट वर्जन दिखेगा आपको, जैसा आईपीएल है। यस। ठीक है। और हर एक पावर लिफ्टिंग एथलीट का कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद, थोड़ा सस्टेन करने की बात है, पर कुछ टाइम बाद सब
सबका सबका भला होगा, सब लोग जो एथलीट पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं उन सबको काम मिलेगा। मैं मानता हूँ कि अपना 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 देश प्रोग्रेसिंग है, डेवलपिंग है, मैं समझता हूँ। पर जो स्पिरिट अपने देश के पास है ना, वो दूसरे किसी देश के पास नहीं है, एक्चुअली दैट्स नहीं राइट। है। नहीं है, वो लोग कर रहे हैं जैसे तैसे, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं पे पीछे है। अभी अभी एक दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने बंदों ने तोड़ा है। राइट। अपने नेशनल मतलब इंडिया के बच्चों ने जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड, एक लड़की ने डेडलिफ्ट का एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो या कम नहीं है वो लोग, बहुत नेक्स्ट लेवल के लोग हैं हमारे पास। बस इतने टाइम से थोड़ा थोड़ा पीछे रह गए थे। अभी धीरे धीरे जैसे फेडरेशन ग्रो कर रहा है, वैसे ही बाकी के लोगों का भी ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस बने रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। या यू बी बट व्हाट कंसिस्टेंटली डू दैट। फेडरेशन डू टुडे दैट इज बेटर, स्मॉल और बिग? एक या दो ऐसी चीजें जो आज के टाइम में वो और अच्छा कर सकते हैं। मैम ये है कि इनको मतलब जो जो स्टेट लेवल के भी अपने एथलीट्स है ना, अपन अभी जैसा महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन मुंबई में है, अगर एसोसिएशन चाहेगा ना तो वो उनको जॉब दिलवा सकता है। हम्म। जॉब दिलवा सकता है अगर चाहेगा तो, अगर भागदौड़ करेगा थोड़ा बहुत, अगर अपना रीच लाएगा तो हम लोग ये फोर्स भी कर सकते हैं कि हम्म। आपके कंपनी में हमारा एक एथलीट होना ही चाहिए। ये फोर्स हम्म। भी कर सकते हैं, है ना। राइट। हम लोग, आप किसी को ये नहीं बोल रहे हो, और वो बाद में आपके कंपनी से ही खेलेगा। तो ये एक तरीका हो गया एक पावर लिफ्टिंग के एथलीट को सपोर्ट करने का, प्लस अपना कंपनी का नाम करने का भी एक तरीका यस। है करेक्ट। ना। आपकी कंपनी का एडवर्टीजमेंट वो हर बार करता रहेगा, जहां पे भी घूमेगा आपका कंपनी का टी शर्ट पहन के घूमेगा, वो हम्म। नाम फैलेगा, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा। वो आपकी कंपनी को वैसे तो नहीं मिलने वाला आसानी से, है ना। वो वीडियोस डालेगा, वो ये करेगा, जो भी कुछ करेगा वो जब वो डालेगा तब आपकी कंपनी का नाम होने वाला है ना। तो और फिर अगर आपने सच में कोई एक बड़े एथलीट को अगर हायर कर लिया, तो हम्म। सोचिए ना कि आपका नाम कितना कहाँ तक लेके जा सकता है वो, करेक्ट। करेक्ट। है ना। तो वो आएगा। मैं आपको वही बोला ना मैम कि अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर कुछ टाइम बाद ये जरूर होगा कि अपने अभी सिर्फ गवर्नमेंट मतलब अभी सिर्फ रेलवेज में जॉब है, कहीं कहीं पे पुलिस में भी जॉब ले रहे, पुलिस में भी पावर लिफ्टर्स को ले रहे। पर मैम वो दिन दूर नहीं कि अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट, अपना नेशनल गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में भी लेना शुरू कर देगा। हम्म। जैसे कबड्डी है, जैसे क्रिकेट है, वैसे पावर लिफ्टिंग भी एक नेक्स्ट लेवल का स्पोर्ट बनने वाला है, बस थोड़े दिन की बात है। राइट। आई एम नो एंड आई एम होपिंग। आई एम होपिंग दैट टू, एंड दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि जो एथलीट्स आपके पास आ जाते हैं हम्म उनकी उम्र 20, 22, 23, 25 इस टाइप की है सबसे ज्यादा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनके ड्रीम्स क्या है सर? क्योंकि आज अगर मैं हम्म। जहां हम हैं वहां देखती हूँ, हम्म। और मैं नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ, मेरा नेशनल 2002 में हुआ था। करेक्ट तब करेक्ट से आज करेक्ट। तक 20, 22 साल, 23 साल हो गए। हम्म और मैं ये देखती हूँ कि आज भी कई सारे स्पोर्ट्स में एक फ्यूचर बनाना बहुत मुश्किल है। अम, और आज भी रेलवेज इज द ओनली ड्रीम। करेक्ट 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 फॉर अस So, पावर लिफ्टर, या yeah, but you have many athletes. या Okay. या Not या everybody will make it to railways. करेक्ट करेक्ट So I want to ask you that when your athletes speak to you, या when they are sharing their dreams with you, what are their dreams? करेक्ट। What kind of a life do they want? एक एक ड्रीम तो ये हो गया कि मुझे जॉब ऐसा चाहिए, चाहे वो रेलवे हाँ में हो हाँ। कोई और, मुझे जॉब चाहिए। ठीक है। हम्म। लेकिन और उनके लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं? मैम जो बैकग्राउंड के मेरे पास लोग आते हैं, जो बैकग्राउंड के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ना मैम, अभी के लिए वो लोग, मैं बोल सकता हूँ वो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम्म। उनकी लाइफ में उनको उनको आपको मैम वो घड़ा है, अपने को अपन जैसा उसको बनाएंगे ना वैसा बनता जाएगा, ठीक है? हम्म। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग कोशिश करो कि जब तक आप 25 के ना हो जाओ ना, तब तक आप ट्राई करो, पूरा रेलवे में लगने की पूरी कोशिश करो।
हम्म। अगर रेलवे में नहीं लगते हो ना, तो हम्म। आप पर्सनल ट्रेनर बन के आप बहुत अच्छा लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म। ठीक है। मैंने खुद रेलवे के 4 ट्रायल दिए थे मैम। हम्म। मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया, मैं नहीं हो पाया मेरा। पर हम्म। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हो पाया तो दूसरे नहीं हो पाएंगे, उनके उनका हो सकता है। हम्म। तो ये वाला कोशिश अपने को कर लेना चाहिए 25 के पहले। हम्म। 25 साल का होने से पहले आप मैक्सिमम अपना कोशिश कर लो कि आप जॉब पे लग जाओ, क्योंकि हम्म। वो होने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ साइड बाय करेक्ट। साइड। करेक्ट। वो एक फिक्स फिक्स इनकम आपको आने वाली है। आपके मन में आया 5 साल बाद 10 साल बाद छोड़ दो ना जॉब, राइट। छोड़ दो ना, आपको नहीं खेलना है, छोड़ दो। तो आप बस वेट करो और अपना ट्रेनिंग करो मस्त वाला। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स भी आपसे उतना उम्मीद नहीं करते 25 साल के पहले तक। एक बार हम्म। 25-26 साल के आप हो जाओगे ना, फिर वो उम्मीद करेंगे। तो हम्म। 25वें साल तक तो आप वेट करो और आपका बेस्ट देने का कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद के 50 साल, मैं समझता हूँ कि आप 75 साल जी लेते हो, तो फिर भी आपके पास 50 साल बचता है, जो आपको मस्त जीने मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका लाइफ कट जाएगा। अगर आपका लाइफ सेट है तो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है तो, अगर नहीं भी है तो भी आपको पावर लिफ्टिंग ऐसा कुछ सिखा जाएगा जिसकी वजह से आप पूरा लाइफ एंड तक, आपके लाइफ के एंड तक आप कमाओगे। राइट। है ना। और ये ऐसा 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 फील्ड है जहां पे आप जितना टाइम रहोगे ना, उतना आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। Right. And what you said, right, at the beginning हम्म। of the podcast, या nothing you do is a waste. या जो वक्त आज वो बिता रहे हैं, चाहे भले ही वो रेलवेज के लिए अपना गोल बना रहे हैं कि रेलवेज में हम्म जॉब मिले, अगर ना भी मिले, तो अगर आपने ठीक से सीखा है, अगर आपने उसमें हाँ, इसको सीखने में वक्त दिया है, अपने दिया है, आप हाँ। को और बेहतर इंसान बनाया है, नॉट ओनली करेक्ट, पावर करेक्ट। लिफ्टर, हाँ, तो यू हाँ। कैन पास दिस नॉलेज ऑन यस। और लोगों को सिखा के करेक्ट, आप करेक्ट, एनरिच करेक्ट। हो सकते हो, आप एक और वही कर रहे हैं लोग, और आप पैसे भी कमा सकते हो। वही कर रहे हैं मैम। वो कुछ लोग हैं जो मेरा बात नहीं सुने हैं, ये भी हम्म। है। नहीं सुनते, हर कोई नहीं सुनता है ना, आप सब पे अपना जोर नहीं चला सकते हो। तो नहीं सुना, वो लोग ने जल्दी छोड़ा, हम्म। उन्होंने छोड़ा जल्दी। अब पर वो लोग यही कर रहे हैं। वो हम्म। लोग जिम में जाके वो लोग क्या सिखा रहे हैं, स्क्वाट बेंच जड़ी सिखा रहे हैं, उसका एक्सेसरी वर्क ही सिखा रहे हैं। उससे उनको कैलोरी काउंटिंग आ गया है, अब वो लोग वेट लॉस करना सिखा दे रहे हैं। हम्म। तो घुमा फिरा के अब यही, और मुझे अच्छा लगता है ये बात कि चलो अच्छा है ना, क्योंकि आपने कभी वेट लॉस किया था, कैसे वेट लॉस किया था ये आपको पता है, तो आप राइट। दूसरे को सिखा पा रहे हो। राइट। है ना। तो यही ऐसे ही करके मैम वो लोग भी लाइफ में एक्सेल करने वाले हैं। उनका लाइफ भी अच्छा होने वाला है, हो रहा है, हो गया है। या। तो बस अपने को बने रहना है। राइट। एंड सर, वो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जो कई सालों से हर ग्रास रूट एथलीट का ये प्रॉब्लम होता है कि मैं टूर्नामेंट में जाने के लिए या अपना ट्रेनिंग करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए फंडिंग कहाँ से जमा करूं। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या सोर्सेस है फंडिंग के फिलहाल, या है ही नहीं? कुछ तो है, कुछ अगर आप कोई आइडिया दे सको कि फंडिंग कहाँ कहाँ से एथलीट्स को मिल सकती है, और इसमें और क्या बेहतर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी, हम्म। प्राइवेट कंपनीज भी, हम्म। व्हाट आर द चैलेंजेस इन फंडिंग राइट नाउ? मैम मैं आपको स्ट्रेट स्ट्रेट बोलूँ ना मैम, देखिए मैम, आप स्ट्रेट, मैं आपको एकदम सीधा बोलता हूँ मैम, ये बात में मेरे बहुत सारा मेरे को अपोजिशन या वो कुछ आ सकता है, मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैम। आपके पास जो साधन है ना, उससे शुरू करो। हम्म। आपके पास जो भी कुछ है ना, आप हम्म। शुरू करो। हम्म। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। हम्म। धीरे धीरे आ जाए, आप अगर करना चाहोगे तो सब कुछ आ जाएगा। हम्म। क्योंकि शुरुआत में आपको सब कुछ नहीं चाहिए, वो सब जो आप देख रहे हो ना, तो शुरुआत में आपको वो सब नहीं चाहिए। आप जो, मैं ये बोलता हूँ कि आप जो प्रोटीन का एक स्कूप भी अगर लेने वाले हो ना, तो वो भी 6 महीने बाद लेने वाले हो। हम्म। पहले 6 महीने तो आपको टेक्निक सीखने में तो चला जाएगा। हम्म। टेक्निक सीखिए, स्पोर्ट को गले लगाइए, धीरे धीरे करके आपको वो अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने लगेगा तो आपका उससे इनकम सोर्स बनने का चांस बनेगा। हम्म। या अगर ये नहीं भी करते हो तो, क्योंकि मुझे लिफ्टिंग करना है तो मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। काम कर रहा हूँ, तो उसमें से जो पैसे आ रहे हैं वो अपने लिफ्टिंग में लगा रहा हूँ, और हम्म। लिफ्टिंग करके मैं ग्रो कर रहा हूँ। हम्म। तो खुद, और अभी इंस्टाग्राम का ये बहुत सारा एक ये है, इंस्टाग्राम की वजह से लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है।
हम्म। इंस्टाग्राम की वजह से एड्स मिल रहे हैं, एड्स करो मेरा, इतना इतना ये कर देता हूँ। हम्म। आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। मैं ये नहीं समझता कि अपने यहाँ पे कोई गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हम्म। ऐसा पावर लिफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है जो अपने पास नहीं है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। आप एक, आपके पास एक जिम है, आप जिम हम्म। में जा रहे हो, आप हम्म। वहां पे लिफ्टिंग कर रहे हो, आपका सब अच्छा ही होना है। आप अगर हम्म। चाहोगे ना, ये सोच लोगे ना मेरा होने वाला अच्छा, अच्छा ही होगा। हम्म। है ना। धीरे 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 करके जैसे 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 पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे धीरे करो ना। और हम्म। रही बात गवर्नमेंट के सपोर्ट करने की, तो मैं ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, पर वो हम्म। आपको बाद में सपोर्ट करती है एक्चुअली। हर एक ग्रास रूट के एथलीट को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो फिर बाकी काम क्या करेगी, हम लोग भी तो डेवलपिंग नेशन हम्म। है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको ये सब उनको सेटअप कराने में, ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि आप खुद को, मुझे अपने आप को पहले उठाना है, फिर हम्म। आगे देखा जाएगा। या उठ के खड़े हो जाते हैं पहले, उठ या के खड़े यू हो हैव जाते हैं, निकलते हैं। Yeah, you have to back yourself first, and then the फर्स्ट, world will back you up. करेक्ट ना। दिस इज व्हाट इट इज। Yeah, दिस इज व्हाट इट इज। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन एल्स yeah, कि वो देगा तब मैं करूंगा। नहीं, yeah. मैं जाऊंगा। मैं फर्स्ट क्लास से नहीं जा सकता हूँ, मैं सेकंड क्लास से नहीं जाता हूँ। मैं Hmm. कैसा भी जाऊंगा, मैं कंपटीशन खेल के आता हूँ। Right. क्योंकि कंपटीशन में लाइफ में कुछ मुझे सीखा जाएगा, जो मैं मेरे लाइफ में यूज करने वाला हूँ। Yeah. आप समझ रहे हो ना, परफॉर्मेंस स्टेज को बहुत कुछ सीखा जाता है मैम। लाइफ लाइफ एक अनप्रेडिक्टेबल ये है, जर्नी है। यू जस्ट हैव टू लिव इट। Yeah, and I want to add to that क्योंकि आप चाहे अपने आप को सीरियस एथलीट समझो ना समझो, जैसे हाँ। मेरा एक अलग करियर है, मैं आती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, हम्म। मैं जो मुझसे हो सकता है मैं वो करती हूँ। करते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं कंपटीशन के लिए जाती हूँ तो मैं अपने अंदर की कुछ ऐसी चीजें देखती हूँ जो मुझे अपने एवरीडे लाइफ में, अपने काम में मदद करती है, लेकिन जो दिखती नहीं है। कि स्टेज करेक्ट। पे आप जाते हो तो आप कैसे परफॉर्म करते हो, स्टेज के पहले आपको कैसे लगता है। दूसरा ये है कि आप इतने सारे पूरे स्टेट से एथलीट्स आते हैं वहां पे, हर उम्र के। करेक्ट। मुझे याद है पिछले साल के किसी डिस्ट्रिक्ट या ऐसी कंपटीशन में एक लेडी हमारे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 50 इयर्स की हूँ और मैंने ये सब खुद से ही पता करा, मुझे कहीं से किसी जिम में किसी लड़के ने बताया इस पावर लिफ्टिंग के बारे में। और मैंने कभी बहुत ज़्यादा ऐसा स्पोर्ट वगैरह किया नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ही पता करा ये क्या होता है। और फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना खुद से शुरू किया। और आज मैंने अपने आप, वो किसी जिम या किसी कोच के साथ नहीं आई थी, अपने से आई थी, अपने से रजिस्टर किया उन्होंने, अपने से वेन्यू ढूंढ के वहां पे वो आई थी। उनके साथ में कोई नहीं था, हाँ। उन्होंने इक्विपमेंट खरीदा था, उन्होंने सारी जानकारी ली थी। और उनको जब देख के मुझे इतना इंस्पिरेशनल लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन आपके पास सिर्फ उससे आएगा जो गोल्ड मेडल ला रहा है। सही बात है। इंस्पिरेशन कंपटीशन जहाँ हो रहा है वहां पहुंचने से आपको एक 12-13 साल का बच्चा भी दे जाता है, एक सही 50 बात है। साल की लेडी भी दे जाती है। और जिसका सही बात गोल्ड आता है, जो चैंपियन है, वो तो है ही, वो तो है। सही बात। इंस्पिरेशनल। सही बात। तो सही बात है। मैंने खुद इस स्पोर्ट से बहुत कुछ सीखा है। और स्पेशली करेक्ट। आपके पास आने से पहले मैं वेट लिफ्टिंग करती थी, मुझे करेक्ट। टेक्निक का करेक्ट। बहुत करेक्ट। मालूम हाँ। था, लेकिन मैंने हाँ। कभी हाँ। compete नहीं किया था। तो आई हैव हाँ। टू हाँ। लाइफ, one life where I learned the basics, and another करेक्ट। life where I competed and I learned हम्म। competition। क्योंकि करेक्ट। करेक्ट। कंपटीशन करेक्ट। के लिए करेक्ट। प्रिपेयर करना और सिर्फ हम्म। जिम में जाके वर्कआउट करना दो बहुत अलग हाँ, चीजें। टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, टू डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट। 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 Sir, तो I have I, this has been so enriching even for me। मैं आपको हर रोज मिलती हूँ जिम में, लेकिन फिर भी मेरे लिए भी आपसे इस तरह से बात करना इतना मुझे अच्छा लग रहा है। वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड, और एक सवाल है जो मैं अपने सारे गेस्ट को पूछती हूँ हम्म। कि ऐसा कोई एक बिलीफ है जो इतने सारे सालों में हाँ। आपने बदला है? हाँ। कोई ऐसा एक बिलीफ जो आपका था जो आपने बदला है?
जो शुरुआत में आपको लगता था कि एक एक चीज ऐसी है, जैसे मेरा ये था कि जैसे मैंने कहा 10 साल पहले मुझे लगता ही नहीं था कि औरतें इतना वेट उठा सकती हैं, लेकिन जब मैंने वो देखा तो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया अबाउट द स्ट्रेंथ दैट वुमेन हैव, एंड टुडे आई नो दैट एक ही वुमेन बिलीफ मैम। कैन वट एवर वेट एंड दे। हाँ हाँ मैम, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि मैम मैम रास्ते के जो डॉग भी होते हैं ना, तो हम्म। वो लोग भी खाना पीना, मतलब उनको भी खाना मिलता है, वो लोग भी भूखे नहीं सोते मैम। ठीक है। अपन ये जन्म में आए या हम लोग को ये जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, हमारा नाम ही रह जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म होने वाला है। यस। नाम बनाने के लिए काम करते हैं मैम, बाकी सब तो रह जाएगा। ठीक है, अच्छा बुरा ऐसा वैसा रह जाएगा। किसी को ये लगना चाहिए कि हाँ वो एक बंदा था जिसने, जैसा अभी मैंने, आप देखो ना मैम कैसा होता है कि मैंने मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर दरिका सर का नाम आया ही ना इसमें। राइट। आया ही ना। मैं कितना, मतलब मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ करूँ वैसे कुछ नहीं। देखो सर का नाम आया ना, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था, पर सर का नाम आ गया। तो ऐसा नाम बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हर एक बंदे ने करना चाहिए। या। डोंट लिव अ ऑर्डिनरी लाइफ मैम। डोंट लिव ट्राई इन। टू ट्राई टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या। लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट। To the fullest. And I think that, sir, is really the takeaway. The takeaway from this episode is two things: that we are all together trying to create an Amazon of powerlifters. We're trying करेक्ट to live करेक्ट our करेक्ट life करेक्ट fullest करेक्ट 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 and give what we are learning. करेक्ट And there is so much that I learn from you. And what you said about being positive and surrounding yourself with positive people. And as you said, at the end of the day, we cannot take anything with us, but our name will remain. And for that name is वी what हैव टू we वर्क। is why we wake up every day, and we should try to make every day count and make an impact, a positive impact on everybody who comes in contact with us. With us. That's what it is. Thank you, sir. I am so happy you spent time with me and you shared so freely. And I'm sure that many people who follow you, who know you, are still going to take away from this episode so many reminders of improving themselves every single day. Thank you so much. Thank Thank you. you so much, ma'am. Thank you so much.